ہوتی ہے، بہتر کی گنجائش ہوتی ہے. بس یہ دعا کیا کریں کہ ہم بہتر طور پر خدا کا کام کر سکیں. آمین. آپ نے تھوڑی دیر پہلے یعقوب کے خط اس کے 3 باب میں سے حوالہ سنا تھا جو بیٹی نے پڑھا تھا. اب دوسرا حوالہ جو آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے نکال لیا ہے، امثال کی کتاب ہے، اس کا 6 باب ہے، 16، 17، 18 اور 19 آیت. اس کو بھی پڑھ لیجئے. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے. خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، وہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قوموں پر رحم کرتا ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے خدا کو 6 چیزوں سے نفرت ہے. سننے میں تھوڑی سی بات عجیب لگتی ہے، کیا خدا بھی نفرت کر سکتا ہے؟ ہاں، خدا کو 6 چیزوں سے نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہت ہے. نفرت سے بھی بڑھ کر خدا کو کراہت ہے. کیا چیزیں ہیں؟ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو درگوئی کرتا ہے اور جو اپنے بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. دوسری بات جو یہاں پہ ہم لوگوں نے خدا کو جن 7 چیزوں سے کراہت ہے ان میں دوسرے نمبر پر ہے جھوٹی زبان. ہم لوگوں نے یعقوب کے خط میں بھی پڑھا ہے زبان کے تعلق سے. بہت ساری وہاں پر باتیں ہیں کہ انسان نے دنیا میں موجود ہر ایک چیز کو قابو کر لیا ہے، لیکن اس چھوٹے سے عضو کو قابو میں کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. ہم نے چاند پر کمان ڈال لی ہوئی ہے. انسان نے دنیا کی عجیب و غریب چیزیں دریافت کرنی ہیں جو انسانی سمجھ سے باہر ہیں. جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ہمارا سر چکرا جائے گا، ہم ہوش باختہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن ناممکنات کو انسان نے ممکن کر لیا ہے، مگر اس چھوٹے سے عضو کو کنٹرول نہیں کر سکا. کسی نے کہا کہ انسان تقریباً 9 یا 10 مہینے کی عمر میں بولنا شروع کر دیتا ہے. کوئی بچہ 9-10 مہینے کی عمر سے انسان بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے ساری زندگی سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. زبان کی بابت بائبل مقدس میں مختلف تشبیہات کا ذکر ملتا ہے. میں پہلے ان چیزوں کو بتاؤں گا، پھر ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے. زبان کو کوڑا کہا گیا ایوب کی کتاب میں. زبان کو تلوار کہا گیا ہے زبور کی کتاب میں. پھر زبان کو تیر کی طرح مہلک کہا گیا، یہ یرمیہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. زبان ایک جانور ہے، زبان آگ ہے، زبان پتوار کی مانند جو کشتیوں کو راستہ دیتی ہے یا رخ دے دیتی ہے. زبان کی بابت لکھا ہوا ہے امثال کی کتاب میں، زبان کے قابو میں زندگی اور موت ہے. پھر زبان سے دشمنوں کو مارا جاتا ہے، یرمیہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. اور پھر امثال کی کتاب میں ذکر ہے زبان زندگی کا درخت ہے. اب زبان جو ہے باتیں اور بھی ہیں کہ زبان فارسی لفظ ہے، پھر عبرانی میں لاشون ہے، عربی میں لسان ہے، یونانی میں گلوسا، اور میں ایک لفظ آیا تھا جیب. ہم لوگ عام طور پہ جیب لفظ استعمال کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کس زبان میں استعمال ہوتا ہے. مجھے لگ رہا تھا پنجابی میں. نہیں، یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جیب. عبرانی، عربی، یونانی، سنسکرت اور اردو میں نے آپ کو ساری زبانوں میں بتا دیا کہ زبان کو کیا کہا جاتا ہے. اب کلسیوں کے خط میں ہم لوگ ایک حوالہ پڑھیں گے 3 باب کی 8ویں آیت. ذرا پلیز یا سن لیجئے. بس ان چیزوں کو اپنے سے دور رکھو، غصہ اور زبان کی شیخی. انسان دنیا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کمال کی مخلوق ہے، ایسی مخلوق جسے خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور
ये अपने जिस्म के हर हिस्से से और हर एक चीज़ से शेखी बिखेरता है। मतलब कुछ लोग कपड़े पहन के शेखी बिखेरना शुरू कर देते हैं, किसी के पास पैसे होते हैं वो पैसों पर शेखी बिखेरते फिरते हैं, किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी या बहुत अच्छा घर होता है उस पर शेखियाँ बिखेरते फिरते हैं। लेकिन कुछ लोग शहजादे ऐसे होते हैं जिन्हां पल्ले कुछ भी नहीं होता, वो अपनी जुबान नाल ही शेखियाँ मारी जाते हैं, इत्थे गल उथे गल इधर गल उधर, मतलब अजीब ही, पल्ले कुछ भी नहीं होता लेकिन जुबान बड़ी तेज, शेखियाँ बिखेरते फिरते। कुल्सियों के खत में इसका जिक्र है, पौलुस रसूल कुल्सियों के खत में लिखता है 3 बाब की 8वीं आयत में, मेहरबानी करके इसको शेखी बिखेरने को, अपनी जुबान से शेखी बिखेरने को दूर रखो। फिर यीशु मसीह के फरमान हमेशा हमारे लिए काबिल समात और हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल रहते हैं। यीशु मसीह के अल्फाज आप लोगों को लगता है कि नहीं, यीशु मसीह के अल्फाज सबसे उत्तम सबसे आला है। मत्ती की इंजील 12वें बाब की 36वीं और 37वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहते हैं और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, जिन्नियां भी भैड़ियां गल्लां मूँह नाल करोगे, ठोकियां ते नकम्मियां गल्लां, अदालत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा उनको, क्योंकि तू अपनी बातों से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों से कसूरवार ठहराया जाएगा। हम इंसान बात करते हुए कभी सोचते ही नहीं हैं, लेकिन याद रखें हमारी बातें ही हमें रास्तबाज ठहराएंगी और हमारी बातें ही हमें कसूरवार ठहराएंगी। इंसानों से बच जाएंगे लेकिन खुदा की अदालत से कोई नहीं बच सकता। मत्ती की इंजील 15वें बाब की 18वीं आयत में फिर यीशु मसीह कहते हैं, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। हम लोग बात करते हुए कभी सोचते ही नहीं है, हमें सिर्फ ये लगता है कि हम कोई गलत काम करेंगे तो फिर ही हम लोग नापाक हो जाएंगे। नहीं अजीजों, अपनी विजन को ब्रॉड करें, अपनी सोचों को खोलें और अपने कान भी खोल लें कि जो बात हम मुंह से करते हैं वो बातें भी हमें नापाक कर सकती हैं। लाजमी नहीं कि कोई कीचड़ हम पर गिरेगा, कोई गंदी चीज हम पर गिरेगी या कोई गंदी हरकत हम लोग करेंगे तो फिर हम नापाक होंगे। नहीं नहीं नहीं, बातें करने से भी हम लोग नापाक हो जाते हैं। किसी शख्स ने दानिश्वर का कॉल, किसी दानिश्वर की बात मुझे सुबह जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मुझे याद आई। किसी ने कहा कि समटाइम लोग एवं कही जाएंगे, भाई साहब मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करना, भाई साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बाजी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, अब्बा जी मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करना, अम्मी जी मैं तुम्हारे बहुत एहतराम करना हूँ। कहते जो लोग ऐसे कहते फिरते हैं ना, कभी वो किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो, कभी इंतहाई गुस्से में हो, फिर उनसे बात करें। अगर उस वक्त वो आपकी इज्जत करता है तो फिर वो वाकई आपकी इज्जत करता है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मुंह दा कौड़ा पर दिल दा बड़ा चंगा है। मुंह दा कौड़ा है, दिल दा चंगा है, लेकिन यीशु मसीह कहता है जो बातें इंसान के मुंह से निकलती हैं दर हकीकत वो उसके मुंह से निकल रही, दिल से निकल रही होती हैं। तो अपने आप को और दूसरों को धोखा ना दिया करें मेहरबानी करके, क्योंकि जिसके दिल में जो होगा उसके मुंह पे वही आएगा। ठीक हो गया, चक्कर में नहीं आना। अगर कोई शख्स आपके खिलाफ या आपके बारे में कोई बुरी बात कहता है तो दूसरा कोई सफाई पेश करता है कि नहीं नहीं यार वो बड़ा चंगा है, उसका दिल बड़ा चंगा है, वो वैसे ही वो मुंह दा बड़ बोला है, दिल दा चंगा, तेरी बड़ी इज्जत करता है, तो समझ जाए कि वो आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है, मेहरबानी, ऐसा नहीं है। जो किसी के दिल में होगा वही उसकी जुबान पर होगा, क्योंकि जुबान दर हकीकत इंसान की शख्सियत की अक्कासी कर रही होती है। आप जो कुछ बोलते हैं, आपके अल्फाज आपके दिल को मनअक्स करती हैं। आपके दिल में क्या चीज़ है, आपके दिल में कैसे ख्यालात बसते हैं, जब आप बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अमसाल की किताब में 13वें बाब की 3री आयत में लिखा, अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन जो अपना मुंह खोलता है, पसारता है,
हलाक होगा। यानी जड़ा बहुता मुंह खोलेगा ना हलाकत की तरफ जाएगा। फिर अमसाल 18वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में हैं और जो उसे दुरुस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। जुबान के काबू में है जिंदगी और मौत, और जो अपनी जुबान को दुरुस्त रखता है वो अपने मुंह का फल खाएगा। कहते ना अपने मुंह दियां खटियां खांदा फिरदा है, यही है। जो अच्छा बोलेगा उसे अच्छा मिलेगा। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बाबत कहें या सुने या तुम्हारे साथ करें, तो वैसा ही तुम भी दूसरों के साथ करो। ये मसीही तालीम है। और पतरस के खत में लिखा हुआ है 3 बाब की 10वीं आयत में बहुत खूबसूरत बात है। पतरस ने भी इस अम्र में खुदा के रूह से बात करते हुए कहा था, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है वो जुबान को बदी और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। आमियानियां करते थे। तो वो शिकारी जब जंगल में गया तो शिकार करते करते शिकार ढूंढते उसे एक स्कल खोपड़ी मिल गई। अब शिकारी पता नहीं किस मूड में था, शिकारी उस खोपड़ी को कहने लगा, तू इत्थे किस तरह। मैं पंजाबी तर्जमा कर रहा वहां अंग्रेजी गल दा। अच्छा तू इत्थे किथे? ते खोपड़ी ने अगों जवाब दिता, बोलना ही मैनू इत्थे लाया, मेरा बोलना ही मुझे यहां ले आया। बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा यार ये तो कोई कमाल की चीज़ मुझे मिल गई है, और ये मैं बादशाह के पास लेके जाऊंगा तो मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। क्योंकि ऐसी अजीब चीज़ों का बादशाहों को बड़ा शौक होता था और वो बहुत बड़े बड़े इनाम लोगों को दे देते थे। शिकारी ने कहा कि मैं इसको बादशाह के पास लेके जाऊंगा और फिर उससे इनाम हासिल करूंगा। बादशाह के महल में गया, जोर जोर से कहने लगा, मैं आज एक ऐसी चीज़ लेके आऊँ आपने दुनिया में देखी नहीं होगी और आप खुश होकर मुझे अपनी बादशाही तक दे देंगे। बादशाह कहता जी यही गल है, तो फिर जा तेन अद्धी बादशाही दे दांगा, वहाँ तू की ले आया। तो शिकारी एक थैले में से, एक बोरी में से उस स्कल को उसने बाहर निकाला और कहता, देखी गई ये बात करता है, और कहने लगा, बता जरा तूने मेरे से बात की थी, तू जंगल में क्या कर रहा था? खोपड़ी चुप। बड़ा जोर लगाया उसने लेकिन खामोश। बादशाह इरिटेट हो गया, उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा एदा भी सिर लाओ। अच्छा उस शिकारी का सिर उतार दिया और अब दोनों को एक बोरी में डाल के ना वहीं पे फेंक आए जंगल में वापस। तो खोपड़ी जो बोली थी ना, फिर शिकारी से कहने लगी, दस तू इत्थे किस तरह? शिकारी कहता, बोलना मैनू इत्थे लाया। बाज़ औक़ात हमारा बोलना हमारी जान ले लेता है। तो मैंने आपको बताया कि हमें सारी जिंदगी समझ नहीं आती कि हमने किस वक्त क्या बात करनी है। मत्ती की इंजील में 18वें बाब की 18वीं आयत आखिर में सिर्फ, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह ने इंतहा कर दी है। ये फाइनल बात है। जब यीशु मसीह कहते हैं ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, किससे? जुबान से बांधेंगे ना। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। हालेलुया। अजीजों, खुदा ने आपकी जुबान में एक कुव्वत को रखा हुआ है, एक इख्तियार को रखा हुआ है, अपनी कुदरत को रखा हुआ है। इस जुबान से हम खुदा की परस्तिश करते हैं, इससे बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। याकूब के खत में आपने क्या पढ़ा है कि क्या एक ही कुएं से दो तरह का पानी निकल सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। है एक चश्मा ऐसा, मैंने कहीं सुना हुआ है, पता नहीं पाकिस्तान में है, बाहर की किसी कंट्री में, उसके दो कलर हैं। किसी बाहर की कंट्री में ऐसा कुआं है जिसके दो कलर्स हैं। पाकिस्तान में भी एक ऐसा है जिसमें एक तरफ ठंडा पानी है, एक तरफ गर्म पानी है। लेकिन जुबान के ताल्लुक से बात होती है कि कुएं में से, कुएं का हाथा थोड़ा छोटा होता है, उसमें या तो खारा पानी होगा या मीठा पानी होगा। शुक्र है झीलों या तालाबों का जिक्र नहीं कर दिया गया बाइबल में, क्योंकि खुदा का कलाम उत्तम और आला है। हालेलुया। खुदा सारी चीज़ों को जानता है। जब लोगों को नहीं था ना पता कि गर्म और ठंडा पानी किसी एक जगह पर मौजूद होगा, तब खुदा को पता था। हालेलुया, आमीन।
खुदा को पता था कि पानी के कितने रंग हो सकते हैं किसी एक झील के अंदर, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदा की रूह कुदस की रहनुमाई से याकूब लिखता है कि एक ही कुएं से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता। इसी तरह हमें भी अपनी जुबान से सिर्फ और सिर्फ एक तरह की ही बात करनी है, या तो बरकत की बात कीजिए या फिर ना कीजिए। मैं बद्दुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, मेहरबानी, मैं अच्छी बात की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप खुदा परस्त हैं तो फिर अपनी जुबान से दुआ दिया करें। आमीन। अगर आप खुदा के लोग हैं तो फिर पॉजिटिव बात करना शुरू करें, अच्छी बात करना शुरू करें। जो बात किसी को सुनने में बुरी लगती है ना, आपको कहने में बुरी नहीं लगती, हमें कहने में बुरी नहीं लगती, जो सुनने में बुरी लगती है, तो ऐसी बातें करें जो लोगों को अच्छी सुनाई दे, और अपने आप अपनी जुबान को काबू करना शुरू करें। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हें इख्तियार दिया जा रहा है कि जो कुछ तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो कुछ ज़मीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुल जाएगा, और जो कुछ आप ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंद जाएगा। आइए खुदा के इस कॉल को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करना शुरू करें। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको